Friends, today we are going to start chapter first, Footprints Without Feet book, A Triumph of Surgery. Here, triumph means victory and surgery is the veterinary hospital, जहाँ पर एक डॉग का इलाज किया जाता है। स्टार्टिंग में वो बहुत फैट था, he was seriously ill, but in the end he was fit and fine. It was the triumph of surgery. Now let us start to read the chapter. First of all, I am going to give you the introduction of the chapter. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. इसमें ट्रिकी जो दिया हुआ है वो एक डॉग का नेम है, छोटा सा डॉग है वो उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार किया जाता है, ओवरफेड करवाया जाता है जो उसकी मिस्ट्रेस हैं। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? डज द डॉग रिकवर? लेट अस know the answers of these questions. The story is about Tricky, a dog who is the pet of a rich lady named Mrs. Pumphrey. जो ट्रिकी है, डॉग हैं, उनकी जो मिस्ट्रेस हैं उनका नेम है मिसिस पम्फ्रे. शी लव्स हर डॉग वेरी मच एंड इज़ अनेबल टू रिफ्यूज़ हिम एनीथिंग ही वांट्स. कभी भी किसी भी चीज़ देने से वो उनको मना नहीं करती. ट्रिकी इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स. So one day when Mrs. Pumphrey is out with Tricky for a walk, the narrator here is the veterinary doctor, sees them and stops to talk. While talking to Mrs. Pumphrey, he realizes that she has been overfeeding Tricky and also had been giving him things. अब उनकी बातों से उनको पता चला कि जो उनकी मिस्ट्रेस है मिसिस पम्फ्रे इज गिविंग him overfed. That's why he was looking ill. Tricky and also had been given him things that he shouldn't eat, due to which Tricky had started looking like a bloated sausage. एक फैले हुए सॉसेज की तरह वो लग रहा था. Soon Tricky got unwell and Mrs. Pumphrey has to call Mr. हैरियट. मिस्टर हैरियट यहाँ नरेटर हैं, वेटरनरी डॉक्टर हैं, फॉर हेल्प. शी डज़ नॉट वांट टू सेंड हिम अवे बट द ओनली वे सजेस्टेड बाय मिस्टर हैरियट इज़ टू गेट हिम हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 15 days. अब जो उनकी मिस्ट्रेस थी डॉग की, वो नहीं भेजना चाहती थी उसको हॉस्पिटल ट्रिकी को, लेकिन डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा 15 days के लिए. Then the story unfolds into how he gets well. Read the description to know more. कि कैसे वो ठीक हुआ, इसके लिए आगे रीड करेंगे. Now the summary of the chapter, A Triumph of Surgery. The story starts when Mrs. Pumphrey, a rich lady, takes her dog out for a walk. जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है जहाँ मिसिस पम्फ्रे हैं, जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस हैं, वो उसको वॉक के लिए ले जाती हैं. A nearby veterinary doctor who knows the lady sees the dog is shocked as he sees that the dog looks like a bloated sausage with a leg at each end. He advises her to stop giving him unhealthy things to eat, but Mrs. Pumphrey is not able to refuse him. डॉक्टर ने मना भी किया उनको कि उनको ऐसी चीज़ नहीं दे जो उसको नहीं खानी चाहिए, अनहेल्दी थिंग्स, बट मिसिस पम्फ्रे नेवर refuse him. Soon he falls sick and the doctor is called. इसलिए जल्दी ही वो बीमार हुए और डॉक्टर को बुलाया गया. The narrator Mr. Harriet then somehow takes Tricky the dog to the hospital even though he knows that Mrs. Pumphrey is not ready to leave her dog. किसी प्रकार से वो लेकर गए उनको. वो जानते थे कि मिसिस पम्फ्रे नहीं भेजना चाहती थी अपने डॉग को. And nearly fainted just by hearing these words. Then he takes the dog along and puts a bed for him in his surgery. The dog doesn't move much nor eats anything for the first 2 days. ना तो डॉग ने कुछ भी खाया और ना ही मूव किया 2 दिन. First 2 days. On the second day he looks around and whimpers a bit. अब वो थोड़ा सा हिलने लगा, चारों तरफ देखने लगा.
he wanted to go out on the third day and started playing with the bigger dogs when he was taken out. और उसने खेलना स्टार्ट कर दिया बड़े जो डॉग्स थे उनके साथ. He also licked means चाटना the bowels of other dogs clean on the third day. और थर्ड डे वो उनको क्लीन करने लगा, बिल्कुल साफ करने लगा. Then his condition started improving very fast. जल्दी उसकी जो कंडीशन थी वो फास्ट इम्प्रूव होने लगी. ही स्टार्टेड फाइटिंग फॉर हिज मील्स विद अदर डॉग्स. दूसरे डॉग्स के साथ फाइट करता अपने खाने के लिए. देन व्हेन दिस न्यूज़ रीच्ड मिसेस पम्फ्रे, शी स्टार्टेड सेंडिंग हिम एग्स as she thought that Tricky was recovering from an illness and needed energy foods. जब मिसेस पम्फ्रे को इस बात का पता चला तो वो उसके लिए भोजन भेजने लगी क्योंकि वो मानती थी कि रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस एंड नीड एनर्जी फूड, कि उसको रिकवरी होने के लिए इलनेस से एनर्जी फूड्स की ज़रूरत है. मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर स्टार्टेड ईटिंग दोज एग्स फॉर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट. अब जो उसके लिए भोजन सेंड किया करती थी वो जो मिस्टर हैरियट नरेटर थे और उसके जो पार्टनर्स थे उन्होंने खाना शुरू कर दिया अपने ब्रेकफास्ट में. देन फॉर इम्प्रूविंग ट्रिकीज ब्लड मिसेस पम्फ्रे स्टार्टेड सेंडिंग इन बॉटल्स ऑफ वाइन विच वॉज अगेन कंज्यूम्ड बाय मिस्टर हैरियट. अब उसको इम्प्रूव करने के लिए उसके ब्लड को मिसेस पम्फ्रे ने स्टार्ट कर दिया वाइन बॉटल सेंड करना और उसको भी कंज्यूम उसका भोग करते थे मिस्टर हैरियट. He used to take 2 glasses before lunch and some more glasses while having his lunch. 2 glasses वो before lunch लेते थे और after some more glasses while having his lunch. Then when she started sending in bottles of brandy for Tricky, that was the time when Mr. Harriet thought that he would really like to keep Tricky as a permanent guest in the surgery. अब वो सोचने लगे जब वो brandy उनको भेजने लगी कि इसको यहीं पर परमानेंट गेस्ट रख लें. मिस्टर हैरियट यूज्ड टू बी रियली हैप्पी समडे बाय हैविंग 2 एक्स्ट्रा एग्स एवरी मॉर्निंग. अब वो हैप्पी थे समडे बाय हैविंग 2 एक्स्ट्रा एग्स लेने लगे मॉर्निंग में. देन हैविंग 4 ग्लासेस ऑफ वाइन्स इन द आफ्टरनून एंड क्लोजिंग द डे बाय हैविंग ब्रांडी एट नाइट. बट देन ही टुक अ वाइज decision and called up Mrs. Pumphrey as she was really worried on this side Tricky was ready to be taken back home. अब उन्होंने एक वॉइस डिसीज़न लिया और मिसेस पम्फ्रे को बुलाया जो वास्तव में बहुत ही चिंतित थी फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्रिकी. और ट्रिकी अब रेडी था वापस घर ले जाने के लिए. ट्रिकी वॉज रियली हैप्पी टू सी हिज मिस्ट्रेस एंड जम्प्ड इनटू द कार. बहुत खुश हुआ उनको देखकर और कार में जंप किया. मिसेस पम्फ्रे said that she won't be able to ever thank him for what he had done and also that his surgery had been successful as Tricky was now cured. मिसेस पम्फ्रे ने कहा कि वो उनका धन्यवाद करने में एबल नहीं हैं. वट ही हैड डन, जो कुछ उन्होंने उनके लिए किया. एंड दैट, और ये किसकी विजय थी? ये विजय थी ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी वेटरनिटी हॉस्पिटल. आई होप you understood the chapter. After that you will complete your question answers related to the chapter. Thank you and have a nice day.